students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study reproduction. Ready, steady, start. Observe the following animals. Which animal do you think reproduce by laying eggs? ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know. Asexual reproduction, sexual reproduction, oviparous and viviparous animals, reproduction in humans, metamorphosis, sex determination. As we know that living beings have a fixed lifespan. They all grow, undergo aging and eventually die. However, life continues to thrive as living beings possesses the ability to produce individuals of their own kind. This means without the process, human or other organisms will cease to exist, as there will be no one younger to replace the old and dying. Reproduction is a life process by which living beings produce young ones of their own kind. It is essential for the process of the continuation of the species. There are two modes of reproduction in living organisms. These are as follows: asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, देखिए, हम सबको ये चीज़ पता है कि जो लाइफ स्पेन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो एक टाइम्स का होता है. ओके, सबका फिक्स्ड लाइफ स्पेन होता है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, अपने ही जैसे को जन्म देना, एक यंग वन को जन्म देना कहलाता है रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन जो होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और ये टू टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ asexual reproduction. Asexual reproduction is a mode of reproduction in which a single parent gives rise to a new offspring. It is commonly occurs in amoeba, hydra, yeast, sponge, starfish and others. Animals may reproduce asexually by methods like binary fission and budding. Okay, देखिए, asexual reproduction क्या होता है? इसमें एक सिंगल पेरेंट जो होता है वो किसी भी अपने बेबी को बर्थ देता है. ओके, asexual reproduction जो होता है वो मेनली पाया जाता है एमीबा में, हाइड्रा, यीस्ट, स्पॉन्ज, स्टारफिश में. ओके, जो एनिमल्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो उनका मेथड होता है बाइनरी फिशन का या फिर बडिंग का. ओके, देखिए साइड में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अमीबा का. दिस इज पेरेंट अमीबा एंड देन elongations of nucleus, then division of nucleus and cytoplasm to daughter cells. ओके, इस तरीके से ये डिवाइड होता है सिंगल पेरेंट से ही और न्यू बेबी बॉर्न होता है. ओके, नाउ बाइनरी फिजन क्या होता है? दिस मेथड ऑफ asexual reproduction is commonly used in unicellular organisms like protozoa. Amoeba and paramecium are the protozoa that produce by binary fission. In amoeba, the parent cell divides into two identical individuals. Okay, देखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कॉमनली देखा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि प्रोटोजोआ है. ओके, एमीबा और पैरामीशियम जो है ये दोनों प्रोटोजोआ हैं जो प्रोड्यूस कर होते हैं किसके द्वारा? बाइनरी फिजन के थ्रू. ओके, एमीबा में जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है दो identical individuals में. Okay, now the nucleus first divides into two nuclei followed by the cytoplasm. Thus, each part receives a nucleus. This is followed by a complete division of a parent amoeba into two daughter amoeba, each of which grows into a full size amoeba. देखिए, जैसे कि ऊपर हमने डायग्राम में देखा उसमें वो प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरीके से अमीबा से एक जो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस आया है एंड देन वो न्यूक्लियस टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है जिसे हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बोलते हैं एंड देन उसके बाद एक प्रॉपर अमीबा आया है जिसको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं. ओके, now इधर budding. This method of asexual reproduction is commonly seen in sponges, flatworms, hydra, etc. The process by which an outgrowth on a bud on a parent body grows and further separates from a new individual is called budding. Okay, देखिए,
ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। ओके, ये कॉमनली देखा जा सकता है स्पॉन्जेस में, फ्लैटवर्म्स में, हाइड्रस में और भी बाकी चीज़ों में। ओके, ये जो प्रोसेस होता है ये एक आउट ग्रोथ होती है बर्ड की। बर्ड आपने देखा होगा बर्ड्स कैसे होते हैं, तो बर्ड्स में आउट ग्रोथ होती है। ओके, जो पेरेंट बॉडी है वो ग्रो करती है और उसके बाद सेपरेट हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं बडिंग। ओके, बडिंग इज कॉमन इन हाइड्रा। In Hydra, a small outgrowth appears on the body. This outgrowth is called a bud. The nucleus of the parent body divides into two and one nucleus grows into the bud. The bud grows and finally gets detached from the parent body of Hydra and begins to live as an individual. ओके, अब देखिए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, यहाँ पे आप बडिंग हाइड्रा में किस तरीके से होती है, साइड में आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मेनली कॉमन होती है हाइड्रा में। ओके, हाइड्रा में जो आउटग्रोथ होती है वो अपीयर होती है बॉडी में, ठीक है, इसकी स्मॉल बॉडी जो होती है उसी में आउटग्रोथ होने लगती है और ये आउटग्रोथ जो होती है इसे हम कहते हैं बड। ओके, अब ये न्यूक्लियस जो बॉडी का पार्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है दो या फिर एक न्यूक्लियस में बड के। ओके, नाउ बड फिर ग्रो होता है और फाइनली डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, ठीक है, और फिर खुद की इंडिविजुअल लाइफ इंडिपेंडेंट जीना शुरू करता है। ओके, नाउ लैब एक्टिविटी 2, objective. To observe the process of budding in Hydra, materials required permanent slides of Hydra and compound microscope. Procedure: keep a permanent slide of Hydra under a microscope. Observe by looking any bulges from the parent body. Now, count the number of bulges observed. Observe the figure board. Draw the diagram of Hydra as observed. ये आप खुद से करेंगे। Research skills. Cloning. Cloning is a laboratory method of asexual reproduction. In this method, an exact copy of an organism is produced. In this method, the nucleus containing a genetic material is the cell inserted in another cell from which the original nucleus has been removed. Okay, देखिए क्लोनिंग जो होता है ये एक लेबोरेटरी मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, इस मेथड में जो एग्जैक्ट कॉपी होती है ऑर्गेनिज्म की वो प्रोड्यूस की जाती है। ओके, इस मेथड में न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसी भी एक सेल का वो इंसर्ट किया जाता है दूसरे सेल में। ओके, जिसके थ्रू ओरिजिनल न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है। ओके, नाउ द शीप कॉल्ड डॉली वाज फर्स्ट मैमल formed as a clone. The genes of the dolly were found to be identical to that of its parents. The credit of first successful cloning goes to Sir Ian Wilnett, a British embryologist, and his टीम। ओके, देखिए जो सबसे पहला एग्जाम्पल मैमल का बनाया गया था उसका नाम था डोली। ये क्लोनिंग के द्वारा ही हुआ था, शीप थी। ओके, और इसके जीन्स जो हैं डोली के बिल्कुल इसके पेरेंट्स से आइडेंटिकल थे और ये सक्सेसफुल हुआ था क्लोनिंग का मेथड। सर इयान विलनेट ये एक ब्रिटिश एम्ब्रायोलॉजिस्ट थे और उनकी टीम के द्वारा ये कराया गया था। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Most multicellular animals reproduce sexually. The method of reproduction in which two parents, one male and the other female, are involved is called sexual reproduction. In this mode of reproduction, union of two parents is needed. The male parent produces the male gamete called sperm, while the female parent produces the female gamete called ovum or egg. The gametes are produced by respective reproductive organs called gonads present in males and females. The male and the female gametes fuse to form a single cell called zygote, which develops into a new organism. The process of fusion of male and female gametes it called fertilization. Fertilization is the process step in the process of reproduction. Okay, देखिए नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, ये मेनली सेक्सुअली होता है, मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है, इसमें दो लोगों की ज़रूरत होती है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल और मेल के द्वारा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ जो मेल पेरेंट होते हैं वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं, वहीं जो फीमेल पेरेंट होती हैं वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम ओवम या फिर एग्स कहते हैं। ओके, ये जो गैमेट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गन्स जिसको हम क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। ओके, नाउ
मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं सिंगल सेल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ओके, जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है, ओके। ये जो प्रोसेस होता है फ्यूजन का मेल और फीमेल के बीच में, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का, ओके। नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, it is the process in which fertilization of male and female gametes take place outside the body of the female. It is generally seen in animals like fish and frogs. Okay, देखिए ये वो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स जो हैं ये बॉडी के आउटसाइड ही प्रोसेस करते हैं और ये मेनली देखा जा सकता है फिश और फ्रॉग्स में, ओके। Internal fertilization, it is the process in which fertilization of male and female gametes take place inside the body of the female. It is seen in most animals like human beings, cows, हॉर्सेस, लायंस, टाइगर्स एट्सेट्रा, ओके। ये प्रोसेस जो होता है ये इसमें मेनली जो प्रोसेस इस प्रोसेस में मेनली जो गैमेट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रोसेस करते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर, और ये एनिमल्स में देखा जा सकता है जैसे कि काउज, हॉर्सेस, लायंस, टाइगर्स और ह्यूमन बींग्स में, ओके। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, those organisms which produce only two type of gamete is called asexual. For example, dogs, cat, fish, man, birds, reptiles, etc. ओके, देखिए वो organisms जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैमेट के थ्रू उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ओके। जैसे कि डॉग्स, कैट, fish, man, bird, reptiles, okay. Those organisms which have both the male and female sex organs in their body are called bisexual or hermaphrodite. For example, earthworm, leech, हाइड्रा एट्सेट्रा। देखिए वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल कहते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म है, लीच है, ओके। ओविपोरस एंड विविपोरस एनिमल्स, oviporous animals are those which lay eggs. The embryo grows inside the egg. The young one hatches the egg and comes out of the end of the gestation period. Some oviporous animals are frog, fish, hen, duck and snake. ओके, देखिए ओविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, वो जो कि एग्स ले करते हैं, ओके। एग्स के अंदर ही एम्ब्रायो जो है वो ग्रो करना स्टार्ट होता है और जब यंग वंस हो जाते हैं वो तो खुद ही जो एग्स हैं वो टूट जाते हैं और उनमें से यंग वंस बाहर आते हैं, ओके। अब ओविपोरस एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, फ्रॉग, fish, duck, snake, okay. Now viviparous animals are those which directly give birth to the young ones. Some viviparous animals are human beings, cows, dogs, lions, etc. ओके, देखिए विविपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं, ओके। जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स, काउ, डॉग, लायन, ओके। नाउ reproduction in humans. Almost every growing person has wondered where babies come from. Let us learn about this as you are grown up adolescent now. In humans, as in sexual reproduction, two individuals are involved, a male and a female. Human males and females have different reproductive systems. ओके, देखिए अब आप बड़े हो चुके हैं और आप एक एडोलेसेंट हैं अब, ठीक है। तो ह्यूमंस में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, मेल और फीमेल, ओके। तो ह्यूमन मेल्स और फीमेल्स जो होते हैं दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, ओके। Due to internal fertilization, the complete development of the embryo into the young ones takes place inside the body of the female. A fully developed young one is delivered by the female after it envelops inside her for 9 months. Let us now study the male and female reproductive system in detail. Okay, देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल्स में, ये आपको पता है। जब बेबी बर्थ लेता है तो वो मदर के वॉर्म से ही बर्थ लेता है, ओके। तो जो प्रोसेस है वो मदर के बॉडी के अंदर ही चलता है, ओके। तो 9 मंथ्स के बाद बेबी बॉर्न होता है। अब इसे हम ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ेंगे, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. The male reproductive system consists of the following organs: a pair of testes, singular testes, prostate glands, 2 sperm ducts, यूरेथ्रा, अ पीनस, ओके। ये सारे
पार्ट्स होते हैं मेल के, ओके, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, ओके। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी इन अ सैक कॉल्ड स्कोट्रम. The testes produce millions of gametes or sperms called and reproductive hormone called testosterone. Each sperm cell consists of a head with a nucleus, middle piece and a long tail. The job of the prostate gland is to secrete prostate fluid, one of the components of semen. The tail acids are the movement of the sperm cells. The sperm cells leave the testes through sperm ducts called vas deferens. Okay, देखिए जो टेस्टिस होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को जनरेट करते हैं, ओके। उन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं। हर स्पर्म जो होता है वो कंसिस्ट करता है हेड विद अ न्यूक्लियस, ओके। मिडिल पीस होता है उनका एंड देन लॉन्ग टेल होती है, ओके। साइड में आपको पिक्चर भी दिखाई गई है कि किस तरीके से एक स्पर्म दिखता है। नाउ जो जॉब होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की वो ये होती है कि वो सिक्रेट प्रोस्टेट फ्लूइड को जनरेट करते हैं, ओके। ये एक कंपोनेंट होता है सेमेन का। नाउ द टेल जो एड्स होती है, टेल एड्स होती है, उनकी मूवमेंट होती है स्पर्म सेल्स में, और स्पर्म्स जो होते हैं वो टेस्टीज लीव करते हैं थ्रू डक्ट्स, जिसे हम वेन डिफरेंस कहते हैं, ओके। नाउ 3 ग्लैंड्स पोर देयर secretion into the sperm duct. The secreted fluid and sperms together form a semen which enters the urethra. Urethra is a tube inside the penis. It carries urine and semen at different times and then into the penis from where it is injected into the body of the female. ओके, देखिए नाउ हमने जो 3 ग्लैंड्स पढ़े हैं ये सिक्रीशन करते हैं स्पर्म डक्ट का, ओके। सिक्रेटेड फ्लूइड और स्पर्म दोनों एक साथ सेमेन फॉर्म करते हैं और एंटर करते हैं यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो कि पेनिस में होती है और ये यूरिन कैरी करती है और सेमेन डिफरेंट टाइम्स पर कैरी करती है पेनिस में, ओके। नाउ ये जो पार्ट है ये पीनस के ही थ्रू इंजेक्ट किया जाता है फीमेल बॉडी में। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एज फॉलोज: a pair of ovaries, a pair of oviducts also called fallopian tubes, uterus, cervix, vagina. ओके, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फीमेल बॉडी के, ओके। द ओवेरीज प्रोड्यूस द एग्स और द ओवा सिंगुलर ओवम. द ओवम इज सिंगल सेल्ड. यूजुअली अ सिंगल ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ इनटू द ओविडक्ट. दिस स्टार्ट्स व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी. If the ovum is fertilized by the sperm cell, it travels through the oviduct to reach the uterus. Uterus is a muscular bag-like structure where the development of an embryo takes place after fertilization. Okay, देखिए जो ओवरीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती है एग्स या फिर ओवा, जिसे हम कहते हैं सिंगुलर ओवम, ओके। वो एग्स प्रोड्यूस करती है और ओवम जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। यूजुअली ये सिंगल ओवम जो होते हैं ये रिलीज किए जाते हैं किसी भी एक ओवरीज में हर मंथ, जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओके। नाउ ये स्टार्ट होता है तब जब एक गर्ल प्यूबर्टी तक रीच करती है, ओके। नाउ ओवम फर्टिलाइज्ड होते हैं स्पर्म सेल से, ओके। ये ट्रैवल करते हैं ओविडक्ट में थ्रू यूटेरस, यूटेरस तक जाते हैं ये, ओके, रीच करते हैं वहाँ तक। उसके बाद यूटेरस जो होता है ये एक मस्कुलर लाइक बैग होता है और यहीं पे डेवलपमेंट होती है एम्ब्रायो की फर्टिलाइजेशन के बाद, ओके। द सर्विक्स इज अ रिंग ऑफ मसल लोकेटेड एट द लोअर थर्ड पोजिशन ऑफ द यूटेरस. It forms a barrier between the uterus and the vagina. Until birth, the baby is held in place by the cervix. During birth, the cervix expands and the baby passes through it. Vagina is an elastic, long muscular canal that connects the cervix to the outside of the body. It is the tube that receives the penis that ejaculates semen during mating. Okay, देखिए सर्विक्स एक रिंग होती है जो कि मसल की जो कि लोकेटेड होती है लोअर थर्ड पोजीशन में यूटरस के, ओके। यहाँ पे एक बैरियर फॉर्म करती है यूटरस और वजाइना के बीच में, ओके। बर्थ तक जो बेबी है वो वहीं पर सर्विक्स पर ही टेक्स प्लेस करता है, ओके। बर्थ के टाइम पे जो सर्विक्स है वो एक्सपेंड हो जाता है जिसके थ्रू बेबी बाहर आता है, ओके। वजाइना एक इलास्टिक की तरह होती है, ओके। ये मस्कुलर कैनल होता है जो कि सर्विक्स से कनेक्टेड होती है आपकी बॉडी के आउटसाइड से, ओके।
ये वो ट्यूब होती है जहाँ से पेनिस जो है इजैक्यूलेट करते हैं मीटिंग के टाइम पे। फर्टिलाइजेशन, as we know that fertilization takes place in the fallopian tube, the sperm cells make their way through to the top of the vagina, cervix and into the uterus, but they do not stay there. They continue their journey into the fallopian tubes and travel upward. Once the sperm have entered the vagina of the female, they swim through the uterus to reach the oviduct. If an egg is present into the oviduct, only one of the sperms will fuse with it to form a zygote. This process of fusion of male and female gametes is called fertilization. Okay, जैसे कि हमें पता है fertilization जो है वो fallopian tube में प्रोसेस करती है. Okay, टेक्स प्लेस करती है. तो जो स्पर्म्स होते हैं वो अपना वे बनाते हैं वजाइना के टॉप से. ओके, सर्विक्स से वो यूटरस में एंटर करते हैं और वहाँ पे वो रुकते नहीं हैं, वो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी फैलोपियन ट्यूब में और ट्रैवल करते हैं अपवर्ड. ओके, जब तक स्पर्म्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं फीमेल बॉडी में वजाइना में. ओके, ये स्विम करते हैं यूटरस तक जब तक ये ओविडक्ट तक पहुँच नहीं जाते. ओके, वहाँ तक ये पहुँचते हैं और एक एग जो प्रेजेंट होता है ओविडक्ट के अंदर, तभी जो है जो स्पर्म्स है वो फ्यूज होते हैं वहाँ पे और क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है. ओके, और ये प्रोसेस होता है जो फीमेल और मेल का फ्यूजन का, इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ओके, नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द ओव्यूम फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. The fertilization egg or zygote formed by the fusion of the nuclei of sperm and egg is the first cell of the new organism. Thus, the new organism inherits some characters from the mother and some of the father. देखिए, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे न्यूक्लियाई जो है स्पर्म का वो ओव्यूम में फ्यूज होता है और प्रोड्यूस करता है सिंगल न्यूक्लियस. ओके, फर्टिलाइज्ड एग जो है जो या फिर जाइगोट जो फॉर्म हुआ है वो फ्यूजन होता है किसका, न्यूक्लियाई का, स्पर्म के और एग का. ओके, अब ये फर्स्ट सेल होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का, जो बच्चा पैदा होने वाला होता है ये उसका फर्स्ट सेल होता है. ओके, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो इनहर्ट करता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मदर से और कुछ अपने फादर से. ओके, इफ द स्पर्म एंड द एग डू नॉट मीट, बोथ जस्ट डिसइंटीग्रेट एंड गेट वॉश्ड अवे. इन दिस प्रोसेस अलोंग विद द स्पर्म एंड द एग सम ब्लड and uterine muscle are also expelled from the body of the female. This process is called menstruation. Okay, देखिए, अगर जो स्पर्म और एग है दोनों एक साथ मिलते नहीं हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वॉश्ड अवे हो जाते हैं. ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्पर्म है और एग जो है वो कुछ ब्लड के थ्रू जो यूटेराइन मसल्स हैं उनसे एक्सपेल हो जाते हैं और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है. ओके, नाउ सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन. Mammals such as humans, cows and elephants usually produce one mature egg at one time and thus only a single baby is produced. Other animals such as dogs and cats produce multiple eggs and can give birth to multiple babies at a time. देखिए, mammals जैसे कि humans, cows, elephants ये एक egg produce करते हैं और एक टाइम पर एक ही बेबी को जन्म देते हैं. उसी तरीके से जो बाकी एनिमल्स होते हैं वो मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस करते हैं और कई सारे बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कि डॉग और कैट. ओके, नाउ research skills. The sperm is unable to reach the egg because sometimes the oviducts of the women are blocked. These women are unable to bear babies because of their failure of fertilization. Hence, in such cases, the doctor recommend a technique called IVF or the vitro fertilization. In this technique, the doctor collect freshly released eggs and sperms and keep them together in a liquid inside a laboratory. In case of fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week, is then placed in a uterus of the mother. The baby develops and is given a normal birth like the other baby. Okay, देखिए,
अगर स्पर्म जो है वो अनएबल है एग्स तक पहुंचने के लिए, कई बार होता है कि नहीं पहुंच पाता है ओविडक्ट तक, तो क्योंकि वो ओविडक्ट जो होता है विमेन का वो ब्लॉक्ड होता है, ओके। तो विमेन अनएबल होती है बेबीज को बर्थ देने के लिए, उनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलियर होता है, ओके। तो इन केसेस में क्या होते हैं, डॉक्टर जो हैं वो रेकमेंड करते हैं आईवीएफ के लिए या फिर विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, ओके। ये टेक्निक्स होती हैं जो कि डॉक्टर्स के द्वारा फ्रेशली एग्स और स्पर्म्स को कलेक्ट करके रखते हैं वो लेबोरेटरीज में, और देन फर्टिलाइजेशन अकर करते हैं। इस केस में बनाई जाती है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट को अलाउ किया जाता है डेवलप करने के लिए फॉर अ वीक, और उसके बाद उसे मदर के यूटेरस में प्लेस किया जाता है, और फिर जिस तरीके से बाकी बच्चे जन्म लेते हैं उसी तरीके से वो उनका बेबी बर्थ लेता है, ओके। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। After fertilization, the zygote moves through the oviduct to reach the uterus. As it moves, it divides repeatedly by the process of cell division and forms a ball of cells. The ball of cells gets embedded on the wall of the uterus for further development. This developing structure is called an embryo. The embryo attaches itself to the lining walls of the uterus through a tissue called placenta. द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट नाउ, ओके। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो मूव करता है ओविडक्ट तक जब तक वो यूटरस तक पहुंच नहीं जाता, ओके। अब ये मूव करता है और डिवाइड होता है रिपीटेडली इस प्रोसेस के थ्रू, सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू, और एक बॉल क्रिएट करता है सेल्स की, ओके। अब ये जो बॉल्स होती है सेल्स की, ये एम्बेडेड हो जाती है, वॉल्स जो आपके यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे अटैच हो जाती हैं, ओके। तो अब ये डेवलपमेंट होता है स्ट्रक्चर का, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं, ओके। नाउ एम्ब्रायो खुद को अटैच करता है वॉल्स की लाइनिंग से, ठीक है, और इस टिश्यू को बोला जाता है प्लेसेंटा। नाउ अब क्या बोला जाता है कि एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, ओके। नाउ प्लेसेंटा हेल्प्स टू रिसीव न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द डेवलपिंग द एम्ब्रायो. It also helps the embryo to send out waste to the mother's body. The cell in the embryo forms group which develop into different tissues and organs of the body. By 8 weeks, all the major organs like hands, legs, hair, eyes and ears are formed. The embryo at this stage is called a fetus. After about 36 weeks, the development of the fetus is complete and a mother gives birth to the baby. Okay, देखिए, now जब placenta जो है वो रिसीव करता है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और बाकी सारे मटेरियल्स एम्ब्रायो को डेवलप करने के लिए, ओके। ये एम्ब्रायो जो है, ये जितने भी वेस्ट है मदर बॉडी के, उनके पास में जितने भी वेस्ट है वो मदर बॉडी से बाहर निकालते हैं, ओके। नाउ जो सेल्स होते हैं एम्ब्रायो के, ये ग्रुप फॉर्म करते हैं और डेवलप करते हैं डिफरेंट टिश्यूज में और ऑर्गन्स में बॉडी के, ओके। 8 वीक्स के बाद, ठीक है, जब ये डेवलपमेंट हो रही होती है तो बेबी के हैंड्स, लेग्स, आईज, हेड, ईयर्स, ये सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, और एम्ब्रायो इस स्टेज पर क्या कहलाता है, एक फीटस कहलाता है। और 36 वीक्स के बाद डेवलपमेंट हो जाती है फीटस की, और वो कंप्लीटली एक बेबी बन जाता है और मदर की बॉडी से बर्थ लेता है, ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 वीक्स ओल्ड फीटस इन विच मोस्ट ऑफ द बेबी पार्ट्स आर फॉर्म, ठीक है। 8 वीक्स का फीटस है जिसमें मोस्टली बेबी के पार्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। फीटस इन द यूटरस, यूटरस में फीटस किस तरीके से रहता है ये देख लीजिए, ओके। नाउ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, द फीटस रिमेन्स इन द बॉडी ऑफ द मदर फॉर सम टाइम ड्यूरिंग विच इट फर्दर डेवलप्स. दिस पीरियड इज कॉल्ड gestation period. The gestation period in case of human beings in 9 months or 266 days. At the end of the gestation period, the fetus is delivered outside of the body of the mother as a baby. This process is called parturition. Okay, now फीटस जो बॉडी में होता है मदर की, ओके, कुछ टाइम तक रहता है और फिर आगे वो डेवलप करना शुरू कर जाता है, ओके। इस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड में जो ह्यूमन बींग्स के अंदर बेबी रहता है वो 9 मंथ्स के लिए रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं 266 डेज के लिए रहता है, ओके। जब एंड होता है जेस्टेशन पीरियड का, तो जो बेबी, जो हमने बोला कि बेबी जो है 9 मंथ्स के बाद डिलीवर हो जाता है मदर की बॉडी से, ठीक है। इस पीरियड के बाद बेबी बर्थ ले लेता है, ओके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पार्चुराइजेशन कहते हैं, ओके। नाउ
Metamorphosis. The individuals which are either born directly or hatched from eggs continues to grow till they become adults. During development, considerable changes occur in the bodies of such animals. In some animals like frog, butterflies and silkworms, the young ones look very different from the adults. Okay, देखिए जो individuals होते हैं जो बर्थ देते हैं डायरेक्टली या फिर एग्स हैच करते हैं, इनकी ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यू करती है एडल्ट्स तक. ओके, नाउ इस डेवलपमेंट के टाइम पर इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में, जैसे कि एनिमल्स में आते हैं उस तरीके से उनमें चेंजेस आना शुरू होते हैं. ओके, अब कुछ एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स है, बटरफ्लाइज है, सिल्कवॉर्म्स है और उनके यंग वंस है वो डिफरेंट टाइप्स के एडल्ट्स होते हैं. ओके, नाउ metamorphosis is the process in which some extreme change take place in an organism so that the organism before and the change is totally different in the organism after the change. The pupa of the insect metamorphoses into an adult. Okay, देखिए metamorphosis ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को बढ़ते हुए अगर देखोगे तो जो प्रोसेस होता है इसका स्टार्टिंग का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होगा और एडल्ट में जब ये फॉर्म होंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा. तो दोनों में चेंजेस दिखेंगे बिल्कुल अलग अलग तरीके से. ओके, नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. द ज़ाइगोट फॉर्म ट्रांसफॉर्ड इनटू द tadpole. The tadpole metamorphoses into an adult frog. Figure shows that the stages of development in a frog. The tadpole looks completely different from the adult frog. Okay, देखिए अब हम फ्रॉग का एग्जांपल लेके देखेंगे कि किस तरीके से जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं वो टेक प्लेस करता है, कि कितना डिफरेंट होती है हर चीज़ें. ओके, नाउ फ्रॉग है, फ्रॉग ने एग्स ले किए हैं, एग से एम्ब्रायो बना है, एम्ब्रायो से टेडपोल आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट है. ओके, टेडपोल बना है, टेडपोल ने 2 एग्स ले किए हैं. ओके, ये 2 एग्स के साथ बना है. ओके, नाउ टेडपोल 4 एग्स के साथ है. अब जो टेडपोल 4 एग्स के साथ है वो फॉर्म हुआ है यंग फ्रॉग में और यंग फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में है. तो हम देख सकते हैं टेडपोल में और फ्रॉग में दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. ओके, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. There are 4 stages in the life cycle of a butterfly: egg, larva, caterpillar, pupa, adult butterfly. Okay, butterfly में 4 stages होते हैं, जैसे कि पहला है egg, then larva जिसे हम caterpillar कहते हैं, then pupa and then adult butterfly. Okay, in this case the larva and the pupa look very different from the adult butterfly. The features that are present in the adult are not found in the earlier stages of its life cycle. Okay, देखिए तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस होता है इनके एडल्ट होने में और जब ये स्टार्टिंग करना शुरू करते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं तब में. ओके, नाउ हियर बटरफ्लाई ने एग्स ले किए, देख सकते हैं आप, और वो कुकून मतलब कि प्यूपा में कन्वर्ट हुआ. प्यूपा से कैटरपिलर कैसा होता है, देखिए कैटरपिलर से क्या आप सोच सकते हैं कि एक बटरफ्लाई बर्थ लेगी, लेकिन होती वो उसी का पार्ट है. ओके, नाउ कैटरपिलर से वो एडल्ट बनी बटरफ्लाई में. ओके, नाउ information literacy. The term test tube is actually not correct. This is because test tube babies are not actually born and grown in a test tube. Patrick Steptoe and Robert Edwards were the first ones who successfully developed the test tube baby. Louise Joy Brown, a girl, on July 25, 1978 in Manchester, UK. It was immediately followed by the birth of second test tube baby Durga on September 30, 1978 by Dr. Subhash Mukhopadhyay in Kolkata, India. Okay, देखिए टेस्ट ट्यूब जो है वो एक्चुअली करेक्ट वर्ड नहीं है जो यूज़ किया जाता है, ऐसा कहा गया है क्योंकि जो बेबीज बर्थ लेते हैं टेस्ट ट्यूब से वो एक्चुअली ग्रो नहीं करते हैं टेस्ट ट्यूब में. ओके, पैट्रिक स्टेप्टो जो हैं और रॉबर्ट एडवर्ड्स जो हैं ये पहले थे जिन्होंने इसको सक्सेसफुली डेवलप किया था टेस्ट ट्यूब बेबी को. ओके, लुइस जॉय ब्राउन, ओके, ये गर्ल है जिसने जुलाई 25 को बर्थ लिया था 1978 में मैनचेस्टर यूके में, और इसको इमीडिएटली फॉलो किया गया था दूसरी बेबी के थ्रू जिसका नाम था दुर्गा, जिसने बर्थ लिया था 30 सितंबर 1978 बाय डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय इन कोलकाता, इंडिया. ओके, नाउ
Here, sex determination, whether a zygote will develop into a boy or a girl, is decided at fertilization. The gender is decided by the sex chromosomes. Sex chromosomes are a pair of chromosomes that determines the gender in a boy. There are a total of 46 chromosomes, 23 pairs in each cell of a human being. In each pair, one chromosome comes from each parent. Out of the total 23 pairs, one pair form the sex chromosomes. Okay, देखिए zygote जो डेवलप होता है वो डिपेंड करता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा. फर्टिलाइजेशन डिसाइड करती है ये चीज़ कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा. ओके, जो जेंडर है वो डिसाइड किया जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा. सेक्स क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के जो डिटरमाइन करते हैं कि जेंडर क्या होगा बेबी का. ओके, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं. ठीक है, ईच सेल में ह्यूमन बींग के. ओके, जो ईच पेयर होता है एक क्रोमोसोम का वो ईच पेरेंट से ही आता है. ओके, तो 23 पेयर्स में से जो एक पेयर होता है जो रीच करता है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं. ओके, नाउ males are said to possess XY sex chromosomes. Females have two identical X-shaped sex chromosomes. So females are said to possess डबल एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स. ओके, देखिए मेल्स जो होते हैं वो एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें, और फीमेल्स में आइडेंटिकल एक्स शेप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम डबल एक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं. ओके, टोटल स्पर्म सेल प्रोड्यूस बाय अ मेल मे बी of two types. 50% carry X chromosomes and the rest 50% carry Y chromosomes. There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either an X or a Y chromosome. देखिए जो टोटल सेल्स होते हैं स्पर्म के वो प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स के जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. ओके, 50% जो होते हैं वो कैरी करते हैं एक्स क्रोमोसोम्स और 50% जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं. ओके, तो ये इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की, जिसमें ओवम जो है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम कुछ भी हो सकता है. ओके, इन केस ऑफ ओवम फर्टिलाइजेस with the sperm carrying X chromosome, the zygote develops into a female double X. If the fertilization of ovum occurs with a Y chromosome carrying sperm, the result is the male offspring. देखिए अब अगर इस केस में जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजिंग स्पर्म है, वो कैरी कर रहे हैं एक्स क्रोमोसोम, तो zygote डेवलप होगा फीमेल में, मतलब कि डबल एक्स में. ओके, अगर फर्टिलाइजेशन में जो ओवम अकर हो रहा है वो वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है तो फिर वो होगा मेल में. ओके, now thus we can say that the gender of a child is decided by the male partner, although he has no control on what kind of sperm cells to release. It is unfortunate that in our society women are blamed for producing female children and ill treated because of false notion. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong and unjustified. Okay, देखिए अब ये केस जो बताया गया है इससे ये जस्टिफाई होता है कि मेल पार्टनर पर ही डिपेंड करता है कि बेबी बॉय है या गर्ल है. ओके, अब ये कंट्रोल खुद मेल पर्सन जो है वो नहीं कर सकते. ये अनफॉर्चुनेट होता है और हमारी सोसाइटी में ये ब्लेम कर दिया जाता है विमेन को, कि उन्हें ब्लेम किया जाता है, उन्हें इल ट्रीट किया जाता है इस चीज़ के लिए कि आपने बॉय या गर्ल किसको बर्थ दिया है. ओके, तो ये बिलीफ जो है ये गलत है और ये completely unjustified है. Okay, now read at a glance. Reproduction is essential for the continuation of a species. Reproduction in animals can be asexual or sexual. Some methods of asexual reproduction are binary fission and budding. Amoeba reproduces asexually by binary fission. Hydra reproduce by budding. New individuals develop from the buds, which are small projection of the body. Sexual reproduction involves union of male and female gametes. Fertilization in animals can be external, internal, or in vitro. Internal fertilization takes place in birds, cows, dogs, and also humans. External fertilization takes place in aquatic animals like fish, starfish, and frog. The animals which lay eggs are called oviparous, and that give birth to their young ones are called viviparous animals. The human male reproductive system is made up of a pair of testes, sperm ducts, and penis. The reproductive system of female includes a pair of ovaries, oviducts, and uterus.
Testes produce sperms and ovaries produce eggs. Fertilization in humans takes place in an oviduct and then the zygote divides repeatedly to form an embryo. This period between fertilization and the birth of the baby is called gestation. Insects and frogs undergo metamorphosis. In animals like frogs and butterflies, the young ones look very different from the adult. Key terms to know. Reproduction, the process by which living organisms produce a young ones of their own kind. Asexual reproduction, mode of reproduction in which a single parent gives rise to a new offspring. Sexual reproduction, mode of reproduction in which union of two parents gives rise to new offsprings. Cloning, laboratory method of asexual reproduction. Zygote, a structure formed by the fusion of male and female gametes. Fertilization, the process of effusion and male and female gametes. Gonad, reproductive organ. Gamete, sex cell present in animals. External fertilization, fertilization which takes place outside the female body. Internal fertilization, fertilization which takes place inside the female body. Embryo, ball of cells in which the zygote is converted. Fetus, stage at which the organs start developing after different organs. Oviparous animals, animals which lay eggs. Viviparous animals, animals which give birth to the young ones. Metamorphosis, the process of drastic change by which a larva, tadpole, caterpillar changes into an adult. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.